Okay. As far as this question is concerned, this one. Okay. Um, Figure 1.1 shows the human heart and main blood vessels. Okay, main blood vessels, the function of the part of the heart, and some of the blood vessels are given in table 1.1. Okay, these are the some what can I say labelings which are present on the diagram. For example, A is the aorta, B is the pulmonary artery. Okay, and K is the which one? It's the right ventricle portion, that is the semilunar valve. Semilunar valve. J is the right atrium. H is the inferior vena cava. Inferior vena cava. Whereas G is the right ventricle. And F is the medium septum, and E is the left ventricle. D is the C is the left atrium, and D is the bicuspid. Valve. Okay. I think so. We have labeled all the parts. If I'm not wrong, we have labeled all the parts. Yes, we have labeled all, almost. K, J, H, G, F, E, B, C, P, and A. Yes. Now complete the table 1.1. One raw has been done for you. That is a blood vessel that carries oxygenated blood, aorta. Now the structure that separates oxygenated and deoxygenated blood, it's label F. Okay, and this one is the medium septum. Okay, another one is the structure that prevents backflow of the blood from the ventricles to the atrium. It's D, that is bicuspid valve. Blood vessels that carries deoxygenated blood. Deoxygenated blood that is carried by the pulmonary artery or pulmonary arch. And this one is the labeling is B in the diagram. A structure that prevents backflow of blood from pulmonary artery to the right ventricle. This one is the K, that is semilunar valve. And the chamber of the heart that contains oxygenated blood. This one is C and E, that is left atrium and left ventricle. C and E, both are. And these are the left atrium and left ventricle. Okay, chamber of the heart that contains deoxygenated blood. These are J and G.
J and G, and its right atrium and right ventricle. Right atrium and right ventricle. Okay. A group of students use a heart monitor to record the pulse rate of an athlete during the 5,000-meter race. The recording start just before the race began and ended just after it had finished, as shown in figure 1.2. As we can see that the observations, they started from here, this point. यहाँ तक क्या था, नॉर्मल हार्ट रेट था, पल्स रेट नॉर्मल था, and when the race started, eventually the pulse rate increases and it goes at very high level up to 160, in between 160 and 180, and in between that area the graph remains constant, and then end of the race it gradually goes down and reaches to its normal position. Not very much normal, लेकिन जिसे कहते हैं ना slowly gradually, ये जिसे कहते हैं कि जो हार्ट रेट है वो स्लो डाउन हुआ है, और इसी की वजह से पल्स रेट जो है वो भी स्लो डाउन हो गया है. अच्छा, टाइम जो वो पूरा दिया है पर मिनट वो 18, टोटल 18 मिनट है, ठीक है. एंड पल्स रेट और बीट पर मिनट जो जा रही है वो जा रही है इन बिटवीन 160 टू 180 हाईएस्ट. ओके, स्पीड के साथ जो है मूव करते हैं. तो यहाँ पे जो ग्राफ है उसमें भी यही बात शो हो रही है कि जो है यहाँ से जैसे इसने एथलीट ने रेस स्टार्ट करी है, तो जब ये अपनी फुल पेस में आया है तब तक जो है कॉन्स्टेंटली इसका पल्स रेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, और इन बिटवीन 160 टू 180 इट्स एडजस्टेड. दैट मींस के एनर्जी, ग्लूकोज, रेस्पिरेशन, एवरीथिंग एंड इवन द पल्स रेट इज आल्सो एडजस्टेड अप टू सर्टेन एक्सटेंट, एंड टिल्स इन बिटवीन 14 to 16 मिनट, दैट इज 15 मिनट्स तक जो है 3 मिनट से लेके 16 मिनट तक जो है ये एक कांस्टेंट जिसे कहा जाए कि पल्स रेट जो है कंसिस्टेंसी के साथ चला है, और इसमें कोई डिक्लाइन नहीं आया है. As soon as the race end, the decline started. That means कि उसकी स्पीड भी कम हुई, less oxygen is required, less respiration is required. So slowly, gradually, the pulse rate is also decreases because heart is pumping the blood not very fastly, and it return back to its normal pumping condition and the normal heart rate. Okay. Now in this question you will have to look at the graph. इसमें ग्राफ में जो कुछ जिसे कहा जाए कि डायग्राम जो हमने देखी थी उसमें ये था कि सडन इंक्रीज and then constant value and then gradual decrease and it goes down. That means कि from normal to very high, and at constant rate it goes the pulse rate, and then sudden decrease, and with steep it goes to the normal stage. So pulse rate increase and remains constant. First क्या हुआ, pulse rate increases and then remains constant. अच्छा, इसमें जो है ना आपने लॉजिक नहीं बतानी कि क्यों हुआ, किससे हुआ, कैसे हुआ, नहीं, because they says that in this question use data from figure 1.2. आपने फिगर को देखना है और उसको यूज करते हुए जो बात उसमें नजर आ रही है बस वो बता दीजिए. पहला स्टेप आपने ये बता दिया. फिर उसके बाद आपने ये बताया कि इमीडिएट राइज एंड इमीडिएट फॉल. ठीक है, immediate rise in the pulse rate and after race ends immediate downfall of pulse rate.
एक ये बात बता दें, ठीक है। एंड इंक्रीज फ्रॉम नॉर्मल pulse rate to in between 160 to 180 range, and then constant till raise ends. ओके, जब रेस एंड हो रही होती है तब तक ये कांस्टेंट चला है, और फिर उसके बाद इमीडिएट जो है वो पल्स रेट जो है वो डाउनफॉल की तरफ है। इस ग्राफ में अगर हम देखें तो हम ग्राफ को जो है इसकी वैल्यूज के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि 44 टू 48 से जो है, जिसे कहा जाए बीपीएम से, यहाँ से जो है एकदम से पल्स रेट जो है वो राइज होना शुरू हुआ है, ठीक है। और मैक्सिमम जो राइज गया है वो कितना गया है, 164 टू 170 तक गया है, दैट मींस इन बिटवीन 160 टू 180। और फिर यहाँ पे ये कांस्टेंट रेट के साथ चला है, और फिर उसके बाद जैसे ही रेस एंड हुई है तो it goes disastrously down from 15 to 16, in between 15 to 16, and then steeps down, that means slowly gradually goes down after 16, almost after 16 minutes, ठीक है। 16 मिनट के बाद जो है इसका जो डाउनफॉल है वो स्लोली और ग्रेजुअली हो गया है। यहाँ तक जो है ये शार्प डाउन हुआ है, और फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जो है स्लोली और ग्रेजुअली हुआ है, दैट मीन्स इट गोज टू दी नॉर्मल स्टेज और नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल पल्स रेट वहां तक पहुंच रही है स्लोली ग्रेजुअली, ठीक है। अच्छा, इसकी जो लेबलिंग्स हैं फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन 1 के पार्ट ए की, वो एज पर मार्किंग स्कीम को हमने बिल्कुल सही की है। अच्छा, इसमें जो है ऑल्टरनेट वैलिड पॉइंट के अंदर जो है आप वेल्व भी लिख सकते हैं, पूरा नाम लिख देंगे, सेमिलुनर वेल्व, बाइकस्पिड वेल्व और मैरिटल वेल्व, ये भी लिख देंगे तो भी एक्सेप्टेबल है, सिर्फ वेल्व लिख देंगे तो भी एक्सेप्टेबल है। रिजेक्ट जो करेगा एग्जामिनर वो राइट है आर्टियो वेंट्रिकुलर वेल्व, अगर ये आपने लिख दिया तो ये रिजेक्ट कर देगा, इसको ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर बी था हमारा, पार्ट बी जो था क्वेश्चन नंबर 1 था, उसके अंदर देख लीजिए यही वाले सारे पॉइंट्स आए हैं जो हमने अभी प्रीवियसली डिस्कस किए हैं। इसमें यह है कि पल्स रेट इंक्रीजेस एंड रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। इमीडिएट सडन स्टीप रैपिड, ऑल्टरनेट वैलिड पॉइंट के अंदर आप ये लिख सकते हैं कि इंक्रीज इन पल्स रेट, ये भी एक्सेप्टेबल होगा, इस पे नंबर मिल जाएंगे। इंक्रीज फ्रॉम 44 टू 48 बीपीएम एंड 164 टू 170 बीपीएम, इसके ऊपर जो है जैसे कहा जाए कि पल्स रेट जो है वो एक कांस्टेंट रहेगा, दैट मींस एट द लेवल ऑफ 164 टू 170 बीपीएम, और सडन राइज जो होगा वो 44 टू 48 बीपीएम से होगा। याद है ना ग्राफ कैसा था, ऐसे यूं करके और ऐसे करके और ऐसे था, ठीक है। और फिर उसके बाद ये एकदम से जो है ना ग्रेजुअल डिक्रीज आ रहा है, तो सडन स्टीप जो आई है या सडन इंक्रीज जो आया है वो ये वैल्यू जो है ये 44 टू 48 बीपीएम, ओके। पल्स रेट और कांस्टेंट कहाँ पे हुआ है, 164 टू 170 बीपीएम की जो वैल्यू है उसमें ये कांस्टेंट चलेगा, ठीक है। और ये कांस्टेंट कहाँ तक चलेगा ये भी हमने इसमें नहीं बताया, लेकिन हमने खुद देखा था कि ये कितने मिनट पे कांस्टेंट कितने मिनट तक चलेगा, ये 14 से 16 मिनट तक इन बिटवीन कांस्टेंट रहेगा, और फिर उसके बाद ये जो है सडन स्टीप डाउन होगा आफ्टर 16, और फिर ग्रेजुअल डिक्रीज होगा आफ्टर 16 मिनट्स के, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है उन्होंने लिखा है कि यूनिट मस्ट बी यूज्ड, अगर जैसे कहा जाए कि आप वैल्यूज को बता रहे हैं तो बीपीएम लिखना, और जैसे कहा जाए 4 लिख रहे हैं तो 4 मिनट पूरा लिखेंगे, ठीक है। 2 लिख रहे हैं तो 2 मिनट पूरा लिखेंगे, या पल्स रेट का जो यूनिट है मेजरमेंट का वो पूरा लिखेंगे, अगर वो लिखेंगे तो ही जिसे कहा जाए कि एक्सेप्ट होगा। रिजेक्ट जो है वो एक्सपोनेंशियल
और जैसे कहा जाए कि अगर इस तरह लिखेंगे कि इंक्रीज बाय 120 टू 160 बीपीएम, नो नॉट लाइक दिस, और ये 3.5 पॉइंट के अंदर अगर आपने टाइम बताया या 3.5 या 6.5 या 16.5 या 14.5 मिनट, इस तरह मिनट्स जो है वो पॉइंट्स के अंदर बताए तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। बिकॉज अगर आप इनका ग्राफ देखें तो ग्राफ के अंदर बॉक्सेस जो बने हुए हैं वो इतने छोटे छोटे हैं कि उसके अंदर पॉइंट की वैल्यू जो है वो कंसिडरेबल है ही नहीं। वैसे ही स्केल बहुत छोटा दिया हुआ है, लिहाजा यू हैव टू राइट द वैल्यूज इन राउंड फिगर्स। ठीक है, राउंड फिगर्स के अंदर जो है आपकी वैल्यूज जो है वो होनी बहुत जरूरी है। अच्छा, फिर इसके अलावा जो है जैसे कहा जाए कि ये सारे जो है ये पॉइंट्स जो है अगर आपने कर दिए तो ये क्वेश्चन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। मैक्सिमम इसके 3 मार्क्स हैं, 3 पॉइंट दे दीजिए। 1 2 3 जो इसमें बताए हुए हैं वैल्यूज के साथ दे दें, नहीं तो ऐसे ही एक्सप्लेन कर दीजिए। दोनों कंडीशंस के अंदर एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्ट इफ यू डू दिस। अगर आपने ये सब किया तो यहाँ पे फिर आपका एग्जामिनर जो है आपको 3 मार्क्स नहीं देगा, वो मार्क्स कट कर देगा। ठीक है। Okay, now the next question is explain the change in pulse rate between 2 to 3 minutes. You have to explain the change. What factor involves in that change? 2 to 3 minutes after recording started. जैसे ही जिसे कहा जाए कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई है 2 to 3 मिनट में, आप ये देखिए कि 2 to 3 मिनट के अंदर एकदम से सडन राइज हुआ है। ठीक है, सडन राइज हुआ है पल्स रेट में। तो इसमें कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसने रेस्पिरेशन को इंक्रीज कर दिया? पीछे मसल्स वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए रेस्पिरेशन करनी एंड पड़ेगी। यस, रेस्पिरेशन तो करनी पड़ेगी, लेकिन मसल्स को वर्किंग करवाने के लिए कोई ट्रिगर फैक्टर भी तो होगा ना। ऐसी बॉडी को मैसेज मिल जाएगा, ब्रेन कुछ तो मैसेज भेजेगा, कोई ऐसी चीज जो ब्रेन सिक्रीट करे, जो कि आके एकदम से जो है मसल्स के ऊपर वर्किंग शुरू करे और हार्ट के ऊपर वर्किंग शुरू करे और वो उसकी हार्ट रेट को इंक्रीज कर दे। इट्स एड्रेनलिन। एड्रेनलिन। yes, that hormones work there. Okay, actually होगा क्या, देखो इसमें जो 2 to 3 मिनट्स वाली बात है ना, अब होगा ये कि जो रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी ना, फॉर एग्जांपल के एक वॉइस आई है रिकॉर्डिंग की। ठीक है, वॉइस आई रिकॉर्डिंग की के जो है अब रेस स्टार्ट हो गई है। ठीक है, एक बीप आई फॉर एग्जांपल, हाई बीप, उस हाई बीप ने ब्रेन को मैसेज भेजा। ठीक है, ब्रेन को मैसेज भेजा कि भाई अब जो है रेस स्टार्ट हो गई है, मसल्स नीड टू वर्क वेरी हार्ड। तो ब्रेन ने एड्रेनलिन जो हार्मोन है, हार्मोन जो है वो ब्लड में सिक्रीट किया। ठीक है, ब्लड के अंदर जैसे ही सिक्रीट किया तो उसने इसके ऊपर वर्क किया, हार्ट मसल्स के ऊपर, and heart muscles start pumping the blood and in everywhere all over the body। ठीक है, इसमें आपके जो है ना पल्मोनरी आर्टरी जो है उसका फंक्शन भी तेज हो जाएगा। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी जो है उसका भी फंक्शन जो है वो बहुत तेज होगा, वो बहुत तेजी से जो है ना पल्मोनरी आर्च जो है वो ब्लड जो है ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेशन के लिए दोनों तरफ लंग्स में फेंकना शुरू कर देगी, और फिर उसके बाद पल्मोनरी वेन जो है वो भी बहुत तेजी से, जिसे कहा जाए कि ब्लड जो है वो हार्ट तक वापस लेके आएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, पल्मोनरी वेन। ठीक है, तो ये जो है एक्चुअली इसकी वजह से जो है एड्रेनलिन की वजह से आपके जैसे कहा जाए कि ये सारी चीजें जो है ये फास्ट अप हो जाएंगी, और इसी वजह से जो है चूंकि ब्लड प्रेशर हाई होगा तो पल्स रेट भी हाई होगा, बीटिंग बहुत ज्यादा हाई होगी। जिसे कहा जाए कि साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन जो है हार्ट मसल्स की, साइमल्टेनियस, एक सेकेंड, ठीक है, साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन जो है हार्ट मसल्स की वो भी इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से पल्स रेट जो होगा वो सडन राइज हो जाएगा 2 to 3 मिनट्स के अंदर, और जो है एकदम से जिसे कहा जाए कि मसल्स को जो है ताकत मिलनी शुरू हो जाएगी, रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज द रीजन बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स ना। अच्छा,
So what's the major factor is adrenaline stimulated by brain as it receives signals by ear, that is sensory organ. So the increase in heart rate, pumping increases the pulse rate. ओके, इस तरह क्या होगा कि पल्स रेट इंक्रीज होगा और इट्स ऑल्सो इंक्रीजेस, एक और पॉइंट हम ये भी लिख सकते हैं, ऑल्सो इंक्रीजेस कार्बन डाइऑक्साइड concentration in the blood. So it must be removed by the body to stop the acidic conditions in blood as well as in the muscles. डेफिनेटली जब रेस्पिरेशन होगी तो क्या होगा, देखो जब रेस्पिरेशन होगी तो उसमें क्या होता है कि ग्लूकोज जो होता है ऑक्सीजन की मौजूदगी के अंदर ब्रोकन डाउन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जब पल्स रेट हाई होगा, एड्रेनलिन बहुत ज्यादा निकला हुआ होगा, तो ये रेस्पिरेशन जो होगी ये फास्ट होगी, ये वाला प्रोसेस जो होगा ये फास्ट होगा, तो डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाएगी। एज सून एज इट गॉट्स इंक्रीज, so it will form the carbonic acid in the blood, increase in blood, ठीक है, increase in blood carbon dioxide concentration, ठीक है, carbon dioxide concentration increase in blood, और ये जो increase है blood का carbon dioxide concentration का, ये form करेगा carbonic acid, ठीक है, जो कि क्या है बेसिकली weak acid है, ठीक है। ब्लड के अंदर, ब्लड प्लाज्मा के अंदर होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करती है इट विल फॉर्म H2CO3 जो कि है कार्बोनिक एसिड, और ये बेसिकली क्या है एक वीक एसिड है। इसकी वजह से ब्लड के अंदर प्लस मसल्स में एसिडिटी होगी and that acidity hinders the overall respiration and energy generating process. Okay, so in order to remove this, the heart starts pumping more faster, so the pulse rate increases automatically. So these two major reasons are there behind increasing the pulse rate in the body as soon as the race started. Okay, now let's have a look on the marking scheme of that B part 2 question. Same is that written here. सबसे पहले जो है जो फैक्टर है वो एड्रेनलिन है जो स्टिमुलेट करेगा हार्ट को, उसके पल्स रेट को, फिर इंक्रीज इन द ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन होगी जो कि एसिडिटी इंक्रीज कॉज करेगी और ये डिटेक्ट होगी। अच्छा, अब ये जो बात है ना कि जैसे कहा जाए कि एक्सेप्ट अगर हम करें तो ये डिक्रीज इन पीएच या एसिडिटी, ठीक है, जो मैंने तुम्हें बताया था, अगर ये लिख दोगे तो ये भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। नर्व स्टिमुलेट हार्ट टू बीट फास्टर, ठीक है, ये चीज भी एक्सेप्टेबल है। रेफरेंस टू द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, अल्टरनेट वैलिड पॉइंट, AW का मतलब होता है अल्टरनेट वैलिड पॉइंट। अल्टरनेट वैलिड पॉइंट के अंदर है मसल्स रिक्वायर्स मोर एनर्जी, मसल्स आर डूइंग मोर वर्क, ठीक है। रेट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इंक्रीजेस, ठीक है, जो हमने अभी डिस्कस किया। इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन, ग्लूकोज, फिर उसके बाद रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड, हीट, और फिर इसके अलावा जो है ना अच्छा लैक्टिक एसिड जो है ना
ये बेसिकली एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो इसको एक्सेप्ट करे या ना करे, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट कि लैक्टिक एसिड जो है वो बेसिकली प्रोडक्शन है एनएरोबिक रेस्पिरेशन की, ठीक है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन की। तो हाँ, इसके लिए अगर आपने लैक्टिक एसिड को मेंशन करना है तो यू विल हैव टू मेंशन द विगरस वर्क ऑफ मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज, सॉरी ड्यूरिंग रेस, ठीक है। अगर आपने ये पॉइंट मेंशन करा है कि रेस के अंदर विग्रस वर्क हो रहा है मसल्स का, तो आप लैक्टिक एसिड की बात कर सकते हैं, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है तो आप लैक्टिक एसिड की बात कर सकते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन के साथ अगर आपने ये लिख दिया कि लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन हो रही है, तो वो ओवरऑल कंसेप्ट ही गलत हो जाएगा, उसको वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो कट कर देगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ये है कि ऑक्सीजन, ग्लूकोज, मसल्स, ठीक है, और ऑल्टरनेट वैलिड पॉइंट के अंदर जो है आप ये भी लिख सकते हैं कि एटीपी वैसोडाइलेशन इन द मसल, बट ये सबसे वीकेस्ट पॉइंट है, ठीक है, ये वीकेस्ट पॉइंट है। सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपके पास ये वाला है एड्रेनलिन का। फिर इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन, ठीक है, एसिडिटी का होना, और फिर इसके अलावा जिसे कहा जाए एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन इंक्रीजेस। ये 3 वैलिड पॉइंट्स हैं और ये बेसिकली 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो अगर आप ये 3 भी बता देंगे विग्रेस एक्सरसाइज के साथ तो ये एक्सेप्टेबल होगा एंड यू कैन गेट द फुल मार्क्स। ओके, ओके, all mammals have a double circulatory system. Figure 1.1 shows the part of the human blood circulatory system. ओके, ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है एंड इट्स अ डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इसमें अगर आप देखें तो इसमें आपको लेफ्ट एंड राइट साइड के ऊपर जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम नजर आ रहा होगा, दैट मींस लंग्स, ठीक है, और इसमें पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स जो हैं वो भी नजर आ रही होंगी, ठीक है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा थॉरो स्टडी करें तो we can get easily which vein comes in and which vein comes which artery goes out and which vein come in ना, ठीक है। अब देखो ये जो है ना, ये पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है। क्वेश्चंस तो बाद में देखेंगे, पहले इसका स्ट्रक्चर तो समझ लें, ठीक है। और ये जो है ना पल्मोनरी वेन है, ठीक है, ये पल्मोनरी वेन है जो कि लेफ्ट जैसे कहा जाए कि एट्रियम के अंदर सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है। ये राइट वेंट्रिकल से निकल रही है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, और ये लेके जा रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे लंग्स में, ठीक है, फॉर प्योरिफिकेशन। अच्छा, ये वाला पोर्शन जो है ये आपका इंफीरियर वेना कैवा है, ये नीचे से आ रही है, ठीक है, एन इंफीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। और जैसे कहा जाए कि ये किसके अंदर एंटर हो रही है, ए पार्ट जो है ये है राइट एट्रियम, ठीक है। अच्छा, ये जो डी है ये राइट एट्रियम में सारा ब्लड आ गया इंफीरियर वेना कैवा से, और ये जो है ना ये वाली जो है ये सुपीरियर वेना कैवा है, ये वाली, ठीक है, ये पीछे से आ रही है, देखो इसके अंदर एट्रियम के अंदर आ रही है राइट वाले में, ये सुपीरियर वेना कैवा है। अच्छा, इसको जरा सा मिटा के ना दोबारा से एक दफा और देख लेते हैं, ठीक है। पल्मोनरी आज तो समझ आ गई है, ओके। अच्छा देखो, ये नीचे से जो आ रही है ये, ठीक है, और ये राइट एट्रियम में राइट एट्रियम में आ गई है, ठीक है, और ये एन लेबलिंग जो है ये इंफीरियर वेना कावा। अच्छा, इसी के अंदर देखो तो ये ए पार्ट यानी राइट एट्रियम के अंदर एक और ये ऊपर से वेसल जो है अंदर एंटर हो रही है, ये पूरी ऊपर से आ रही है क्रेनियल एरिया से, ये है सुपीरियर वेना कैवा, सुपीरियर वेना कैवा। तो ये जैसे कहा जाए राइट एट्रियम के अंदर आ गया। अच्छा, राइट एट्रियम से ब्लड जो था वो राइट वेंट्रिकल यानी डी पार्ट के अंदर आया, ये राइट वेंट्रिकल है आरबी,
इसमें यहाँ से ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ और इसने ब्लड जो है इस वेसल के अंदर जो फेंका है, ये है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। पर ये आर्टरी तो है, लेकिन ये क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है। तो जो जे है वो क्या है, पल्मोनरी पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, ये पल्मोनरी आर्टरी हो गई। अच्छा, फिर यहाँ से प्योरिफिकेशन हुई पूरी ब्लड की, और ये जो के है ये पल्मोनरी वेन है जो कि, अच्छा, पल्मोनरी आर्टरी जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला है, CO2 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। और यहाँ से ये प्योरिफाइड जो है पल्मोनरी वेन जो है, पल्मोनरी वेन जो है ये लेके जा रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके। और ये किसके अंदर लेके जा रही है, ये देखो पीछे से आ रही है और ये लेफ्ट एट्रियम के अंदर आ गई, ठीक है। ये जो बी पार्ट है ये इधर से भी ये लेफ्ट एट्रियम में आ गई, ये वाला पार्ट जो है, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है। और फिर यहाँ से ब्लड जो है ये सी पार्ट के अंदर आ गया, तो ये जो है ये है, ये वाला जो पार्ट है ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। अच्छा, ये मस्कुलर वॉल ऑफ हार्ट है ये, ठीक है, ये लेबल हुई भी है। अच्छा, इसके साथ ही यहाँ पे ये जो है, दिस वन इज कॉल्ड द मीडियम सेप्टम, ठीक है, ये मीडियम सेप्टम है जो हार्ट को दो हिस्सों में तकसीम कर रही है। अच्छा, अब ये देखो, ये मैंने तुम लोगों को बताया था कि लेफ्ट वेंट्रिकल है, जब ये स्क्वीज होगा तो यहाँ से ब्लड जो निकलेगा, कलर चेंज करते हैं चलो। अच्छा, यहाँ से ब्लड जो निकलेगा ऑक्सीजनेटेड होगा और इस वाली जो टर्निंग जिसे कहा जाए कि ट्यूब है इसके अंदर जाएगा, सब जगह जिसे कहा जाए कि ब्लड प्रोवाइड करेगा, नीचे ये एओर्टा बनाता हुआ नीचे की तरफ निकलेगा, ठीक है। दिस वन इज द एओर्टा, ये देखो ये पीछे से आ रहा है और ये एओर्टा, सही, ये वाला, ये पूरा पोर्शन जो है जो पर्पल वाला ये एओर्टा हो गया। अब ये अगर किडनी के अंदर चली जाएगी तो ये रीनल आर्टरी हो जाएगी और ये यहाँ से नीचे चली गई। ये देखो ये एन जो है, जो इंफीरियर वेना कैवा मैंने लेबल किया था, ये जब नीचे से आ रही थी तो अगर ये किडनी के अंदर एंटर होगी तो ये रीनल वेन कहलाएगी दोनों तरफ से, सही है। ये एओर्टा है, दिस वन इज द एओर्टा एंड दिस वन इज द वेना का, ठीक है, ये दोनों चल रहे हैं और ये डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है, राइट। अच्छा, अब पहला सवाल ये है कि नेम द मस्कुलर वॉल दैट सेपरेट्स द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द ह्यूमन हार्ट, वो है ये वाली, ये वाला पोर्शन जिसको मैं कलर कर रही हूँ, ये, दिस वन इज कॉल्ड द मीडियम सेप्टम, मीडियम सेप्टम, ओके। Another thing is they describe what is meant by the term double circulation. Double circulation means the blood is passed 2 times from the heart while it's distributing in the body, ठीक है। अच्छा, इसका जो आंसर है वो मैं इधर लिख देती हूँ, ब्लड passes 2 times from the heart in order pump in all over the body। अच्छा, ये आंसर सिर्फ इतना लिखना है इसमें ना, अगर डिटेल मांगी है तो फिर आपने पूरा उसको एक्सप्लेन करना है, अगर शॉर्ट मांगा है तो आपने बस इतना लिख दिया, इट्स ओके, इस पे नंबर मिल जाएंगे। 2 टाइम्स कैसे पास होता है, लेट्स सी। डबल सर्कुलेशन इज दैट कि ये जो वेना कैवा है, यहाँ से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हार्ट के अंदर आया, हार्ट से ये गया रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, ठीक है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम से फिर ये दोबारा प्योरीफाई होके राइट लेफ्ट एरिया, लेफ्ट साइड में हार्ट के आया, ये एक सर्कल बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये यहाँ से फिर दोबारा जो है ये किसके अंदर गया, ये एओर्टा के अंदर गया और फिर दोबारा ये बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो 2 टाइम्स पास हो रहा है, पहले जो है ये हार्ट के अंदर आया, हार्ट के बाद ये लंग्स के अंदर गया, लंग्स से फिर दोबारा हार्ट में वापस आया एक चक्कर, फिर हार्ट से फिर दोबारा निकल के ये बॉडी के अंदर गया, ये दूसरा चक्कर, ठीक है। सो 2 टाइम्स पास हुआ है, फर्स्ट टाइम एंड देन सेकेंड टाइम, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द डबल सर्कुलेटरी सिस्टम।
Now the next question. Yes. This question says that table 1.1 describes some of the structure of the human circulatory system shown in figure 1.1. Complete the table. One draw has been done for you. That is the blood vessels with the large lumen, vena cava N, जो मैं पहले आप लोगों को बता चुकी हूँ. ठीक है. अच्छा, अब इसकी जो लेबलिंग्स हैं वो सारी की सारी मैं आप लोगों के साथ लिख लेती हूँ. ठीक है. और इट्स पार्ट सी. तो इसकी लेबलिंग्स भी और इसके नाम जो है वो भी बता देती हूँ. और फिर उसके बाद व्हेन यू गो on the self study you can match it. Okay. Heart chamber with thickest muscular wall, that is left ventricle, and its labeled part is C. Blood vessels that carries oxygenated blood to the heart, it's pulmonary vein. P vein दिख रही है. ठीक है. Pulmonary vein and the labeling is K. अच्छा, blood vessel that carries oxygenated blood away from the heart, it's the aorta. Okay. And aorta is labeled with P symbol. Okay. And then blood vessels that carries blood away from the kidney. ठीक है. Away from the kidney, that is renal vein. ठीक है. Renal vein and its M. And this one is the vena cava. So अगर ये लेबलिंग्स पूरी कर दी तो 4 on 4 आपके पक्के मार्क्स हैं. ओके. अब जरा मार्किंग स्कीम देख लेते हैं इसकी कि एग्जामिनर क्या कह रहे हैं. यस, वही वाली बात. ठीक है. इट्स अ मीडियम सेप्टम या सेप्टम, दोनों पे नंबर मिल जाएंगे. मीडियम सेप्टम भी लिखेंगे तो भी सही है. ठीक है. और बी पार्ट जो है, ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस, वन फॉर द कंप्लीट सर्किट टू गेट बैक टू द सेम पॉइंट, वन लूप फॉर इन द लंग्स एंड वन लूप टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी. जो मैंने तुम लोगों को बताया था कि पहले वेना कावा से लंग्स में, लंग्स से हार्ट में वापस आया, एक लूप हो गया. फिर हार्ट से बॉडी एंड देन बॉडी से अगेन हार्ट के अंदर आया, ये सेकंड लूप हो गया. ठीक है. अच्छा, फिर उसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर है हायर ब्लड प्रेशर. ठीक है. फ्लो रेट. फिर उसके बाद सिंगल सर्कुलेशन, allow different blood pressures into each loop. ठीक है. prevents mixing of the oxygenated and deoxygenated blood, allows animal to have high metabolic rates and allow animals to be large and tall. That means कि growth, ये सारा सब कुछ जो है ये ग्रोथ इंक्रीज करने के लिए यूज होता है. बिकॉज जितनी ज्यादा जिसे कहा जाए कि ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाएगा, उतनी ही अच्छी रेस्पिरेशन होगी. और जितनी अच्छी रेस्पिरेशन होगी उतना ही अच्छा जिसे कहा जाए कि सेल्यूलर डिवीजन होगी. ठीक है. सेल्यूलर डिवीजन होगी. सारे एनर्जी प्रोवाइड होगी तो सेल्यूलर डिवीजन क्यों नहीं होगी. अच्छा, ये वाले सारे जो है ये मैंने आपको लेबल करके बता दिए हैं. यू विल हैव टू चेक इट विद द मार्किंग स्कीम when I will share this marking scheme along with the paper, you people. तो आप इसके साथ सॉल्व कीजिएगा. will find it very easy. अच्छा, इसमें जो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अगर आप लिख देंगे क्वेश्चंस में तो वो रिजेक्ट हो जाएंगी. फॉर एग्जांपल, अच्छा, एक हद तक एक्सेप्ट ये भी हो जाएगा कि मोर एफिशिएंट, फास्टर डिलीवरी, रिमूवल ऑफ नेम्ड फूड और कंपोनेंट्स, ऑक्सीजन और मेंटेन ब्लड प्रेशर. ठीक है. इसमें रिजेक्टेड पार्ट कोई भी उन्होंने नहीं बताया पॉइंट. फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ पे बोला है कि 1 मार्क फॉर ईच. ठीक है. सो इस तरह 4 मार्क्स जो है वो आपको मिल जाएंगे. ठीक है. अच्छा जनाब, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन. ओके. This question is of 4 marks. ठीक है. So you will have to write minimum 4 marks and maximum more than, because you have got plenty of lines and space here. Okay. The question is describe how blood is transported from the vena cava to the lungs. You may use the letter on figure 1.1 in your description. 1.1, that is the figure which is given on the previous pages.
ठीक है, सो वो उसमें से आप देख सकते हैं। अब देखिए इसमें मैं आपको बता सकती हूँ, ठीक है, डिस्क्राइब हाउ द ब्लड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वेना कैवा टू द लंग्स। ठीक है, ब्लड सुपीरियर पॉइंट्स लिख रही हूँ, सिर्फ मैं डिटेल में नहीं लिख रही, क्योंकि डिटेल में आप लिखेंगे। सुपीरियर, इंफीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा carries deoxygenated blood to right atrium. Right atrium pushes blood into right ventricle. RV stands for right ventricle. Right ventricle transfers or pushes blood to pulmonary artery that brings blood to both lungs for purification. अब देखो इसमें उन्होंने कहा डिस्क्राइब हाउ ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द वेना कैवा टू द लंग्स, बस यहाँ तक बात कही है, इससे आगे नहीं। क्या अब ये नहीं बताना है इसमें, अगर नहीं बताएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बता भी देंगे तो एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेंगे कि भाई वो लंग्स जो होते हैं वो ऑक्सीजनेटेड कर देते हैं, और फिर उसके बाद वहां से जैसे कहा जाए कि पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस जो होती है वो लेकर आती है हार्ट में लेफ्ट एट्रियम की तरफ ना, वो आपने नहीं बताना है। इसमें कौन सा पॉइंट नहीं बताना है? रिटर्निंग ऑफ ब्लड, रिटर्निंग ऑफ ब्लड टू द हार्ट, नॉट एक्सप्लेन। ठीक है, इसको एक्सप्लेन नहीं करना है, यहां तक बस रुक जाना है, 4 मार्क्स मिल जाएंगे बहुत आराम से। ओके, अच्छा चलो ये भी बता देते। Now this question involves the coronary heart disease. Doctor recommended that the healthy diet can reduce the risk of a coronary heart disease. Give one other lifestyle improves the patients that makes that can reduce the risk of the coronary heart disease. So एक नंबर का सवाल है, तो इसमें हम ये लिख सकते हैं रेगुलर एक्सरसाइज। ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइज, एक सेकेंड, और रेगुलर वर्कआउट। Okay, sometimes surgery is required to treat coronary heart disease. Describe one named example of the surgery that can treat coronary heart disease. अब देखो उन्होंने सिर्फ जो है एग्जाम्पल को डिस्क्राइब करने को बोला है, दैट इज हम एंजियोप्लास्टी जो हमने कल पढ़ा था, angioplasty in which stent or medicated stent is being introduced in the blocked artery to clean the fat depositions. Okay, so if you write this whole answer, you will get the 2 on 2. Okay, okay. Table 5.1 shows the main organs in the mammals and the vessels that deliver the blood and take it away. Complete the table. Heart deliver the blood to vena cava, delivers blood. Heart को कौन कौन deliver करता है? vena cava, superior और inferior, ठीक है, और इसके अलावा coronary artery है ना, coronary artery या वेन भी कह सकते हैं, इन्होंने आगे वेन लिखा हुआ है तो आप वेन की तरफ से जाए, आर्टरी अगर लिखा होता तो हम आर्टरी लिखते थे। ठीक है, इट्स ओके। अच्छा
ये ब्लड जो होता है वो डिलीवर करती है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है टेक्स ब्लड अवे, ब्लड डिलीवर जो है वो आर्टरी करती है। यहाँ पे डिलीवर की बात अगर हम वेन की करेंगे तो ये होगी पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। अच्छा, एओर्टा इधर टेक्स ब्लड अवे, और आर्टरी जो है वो आपकी कह सकते हैं पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद है लंग्स, पल्मोनरी आर्टरी टेक्स ब्लड अवे, लंग्स से जो है लेके जो जाती है वो पल्मोनरी वेन। ओके। अच्छा, फिर उसके बाद है हेपेटिक आर्टरी जो देखा है लिवर के अंदर, और फिर दैट डिलीवर्स द ब्लड, हेपेटिक पोर्टल वेन जो इंटेस्टाइन से आ रही होती है। याद है वो जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, यहाँ पे इंटेस्टाइन थी और फिर यहाँ से हेपेटिक पोर्टल वेन थी जो कि लिवर के अंदर एंटर हो रही थी, ऐसे करके, याद है। और वो दो हिस्सों में तकसीम हो रही थी, ठीक है। ये जो है ये क्या है, हेपेटिक पोर्टल वेन, HPV, हेपेटिक, हेपेटिक पोर्टल वेन, ठीक है। और ये हेपेटिक वेन है। अच्छा, किडनी में आर्टरी जो है वो रीनल आर्टरी दैट डिलीवर्स द ब्लड और टेक्स अवे रीनल वेन, ठीक है। इट्स वेरी इजी। अच्छा, ये now here is the question that figure 5.1 shows the section across the part of an artery, ठीक है। आर्टरी का ये पार्ट जो है ये इसमें शो किया गया है। दैट मीन्स के होल आर्टरी नहीं लिया बल्कि एक थोड़ा सा सेक्शन उसका जो है वो कट करके ले लिया गया है यहाँ से यहाँ तक का। अच्छा, इसकी ये जो है ये इनर लाइनिंग है आर्टरी की, ठीक है। एंड दिस वन इज द आउटर लाइनिंग, ठीक है। थिक वॉल होती है, ठीक है, अच्छी खासी थिक वॉल है ये, सही है। ये इंटरनल पार्ट है और ये फ्रंट का बाहर का निकलता हुआ हिस्सा है। अच्छा, with reference to 5.1 explain how the structure of an artery is related to its function। तो मैं सिर्फ पॉइंट्स लिख देती हूँ, ठीक है। और जैसे कहा जाए कि उसको जो है आप एलिब्रेट करके खुद लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट, स्मॉल ल्यूमेन supports the forward flow of blood and prevents backward flow। Elastic, thick, muscular walls supports, resist high blood pressure that comes from heart, comes from heart। These 2 points are enough for getting the 3 marks।